Hello student, welcome to this channel. We are here to discuss the solution of mental ability section of STSC examination. So let's get started. So now here question number 1. Find the missing number of given number series. इस number series का missing number find करना है. So first find the pattern of the series. So pattern of the series is 1 plus 1, it means 2. Now 1 plus 2, it means 3. Now 2 plus 3, it means 5. Now 3 plus 5, it means 8. Now 5 plus 8, it means 13. Now 8 plus 13, it means 21. Now 13 plus 21, it means 34. 21 plus 34, it means 21 plus 34, it means 55. So here missing number is 55. तो यहाँ पर missing number 55 होगा. So it means option C, option 3 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So question number 2 is 10, 11, 15, 24 and find the missing number of given number series. इस number series का भी missing number find करेंगे. So first find the pattern. So pattern of the series is 10 to 11, it means plus 1. 11 to 15, it means plus 4. 15 to 24, it means plus 9. So pattern is 1, 4, 9. 1, it means 1 square. 4, it means 2 square. 9, it means 3 square. So pattern क्या हो गया? 10 plus 1 square, 11 plus 2 square, 15 plus 3 square. Now 24 plus 4 square. 24 plus 4 square, it means 24 plus 16, it means 40. So here missing number is 40. So it means option first is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिसिंग नंबर फाइंड करना है. सो पैटर्न फाइंड करेंगे. सो पैटर्न ऑफ द नंबर सीरीज इज 12 to 12. It means if 12 multiply by 1, it means 12. Now 12 multiply by 2, it means 24. Now 24 multiply by 3, it means 32. Now 72 multiply by 4, it means 288. Similarly 288 multiply by 5, 288 multiply by 5, it means 1440. So 1440, it means option 3. So here option 3 is the correct answer. Next question पे मूव करेंगे. So next question number 4. Find the missing letter of given letter series. So first find the place value of given letter. So place value of C is 3, place value of D is 4, place value of F is 6, place value of I is 9. So pattern of the series is 3 plus 1, it means 4. Now 4 plus 2, it means 6. Now 6 plus 3, it means 9. Now 9 plus 4, it means 13. So 13, it means M, because place value of M is 13 in English alphabet. So here missing letter is M. So it means option 2 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. Next question के लिए मूव करेंगे. So इसमें भी next term find करना होगा. So first find the pattern of the series. So pattern of the series is ABC, DEF. Alternate term को choose करेंगे. ABC, after ABC next is DEF, after DEF next is GHI. So GHI is the missing term of given number series. So here option 3 is the correct answer of question number 5. Let's move on to the next question. So now next question is question number 6. Find the missing term of given alphanumeric sequence. So first find the first missing letter of given series. So first letter check करेंगे. सारी term का first letter check करेंगे. So P, R, T, V and find the next missing term. So P, it means 16, R, it means 18, T, it means 20, V means 22. So pattern is 16 plus 2, 18, 18 plus 2, it means 20, 20 plus 2, it means 22. Now 22 plus 2, it means 24. So 24, it means X, because place value of X is 24 in English alphabet. So पहला missing letter क्या हो जाएगा? X हो जाएगा. Second letter check करेंगे सारी terms का. So C, F, I, L and find the next
letter. So place value of C is 3, place value of F is 6, place value of I is 9, place value of L is 12. So pattern is 3, 6, 9, 12. Now similarly 15. So 15 it means O, because place value of O is 15 in English alphabet. So second missing letter is O. But इस एग्जामिनेशन में O को 0 नोट कर रखा है, सो ये 0 ना होकर O है. अब इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे. सो नंबर सीक्वेंस क्या है? 3, 5, 8, 12 एंड नेक्स्ट इज मिसिंग. सो 3 + 2 it means 5, 5 + 3 it means 8, 8 + 4 it means 12. Now pattern is +2 + 3 + 4 now +5. So 12 + 5 it means 17. So missing number हो जाएगा 17. So missing term हो जाएगी X17O. So here option first X17O is the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्बन पीपल को. एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को. सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट को. एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को. ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को. सो क्वेश्चन इज हाउ मनी अर्बन आर गवर्नमेंट सर्विस. हाउ मनी अर्बन. अर्बन कौन होंगे? जो भी रेक्टेंगल के अंदर है वो सब अर्बन है, और उनमें से गवर्नमेंट सर्विस में कौन है वो हो जाएंगे. सो किस में होने चाहिए? सर्कल में भी होने चाहिए और रेक्टेंगल में भी होने चाहिए. सो सर्कल और रेक्टेंगल में कौन कौन है? 12 सर्कल में है और रेक्टेंगल में है. ये 4 भी सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, और ये 6 भी सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में. सो 12 + 4 + 6 इट मीन्स 22. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22. सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सेम लास्ट क्वेश्चन में जो था उसी के लिए. हाउ मनी टीचर्स आर नाइदर गवर्नमेंट सर्वेंट और नोर डॉक्टर्स नोर अर्बन. सो कितने ऐसे टीचर हैं? टीचर इट मीन्स जो ट्राइंगल में है वो सब टीचर हैं. तो ट्राइंगल में कौन कौन है? 4 है, 11 है और 5 है. इन 4, 11, 5 में ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, ना डॉक्टर होना चाहिए और ना ही अर्बन पीपल होना चाहिए. सो 4 क्या है? 4 गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, अर्बन भी है और साथ में टीचर भी है. सो ये 4 एलिमिनेट हो जाएगा. 11 अर्बन भी है और टीचर भी है. सो अर्बन भी नहीं होना चाहिए, तो 11 भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो बचा क्या? 5. ओनली 5 ऐसा बचा जो सिर्फ ओनली टीचर है. ना ये अर्बन पीपल है, ना ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना ही ये डॉक्टर है. सो हेयर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सेम डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हो जाएगा हाउ मनी अर्बन आर गवर्नमेंट डॉक्टर. सो अर्बन होना चाहिए, साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए. गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट में भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए. सो अर्बन मतलब 31, 11, 3, 6, 4 एंड 12 ये सब अर्बन पीपल हैं, जिसमें से गवर्नमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए. सो ये 12 गवर्नमेंट सर्वेंट है, 4 गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये 6 गवर्नमेंट सर्वेंट है. बाकी ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है. अब इनमें से डॉक्टर होना चाहिए, तो ये 12 और ये 4 डॉक्टर नहीं है, तो ओनली 6 पीपल ऐसे हैं जो अर्बन है, साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और डॉक्टर भी हैं. सो हेयर option 3 it means 6 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So same direction के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मनी गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट अर्बन. गवर्नमेंट सर्वेंट सो मतलब जो भी सर्कल के अंदर है वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट है. तो 3, 10, 6, 12 एंड 4 ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट है. उनमें से अर्बन में नहीं होना चाहिए, मतलब इस रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए. तो ये 12 रेक्टेंगल में तो एलिमिनेट हो जाएगा, 4 भी रेक्टेंगल के अंदर तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 6 भी
इस रेक्टेंगल के अंदर है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कितने, ये 3 and 10 बचे। सो 3 + 10 इट मीन्स 13 पीपल ऐसे हो जाएंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन अर्बन नहीं है। सो हेयर ऑप्शन फर्स्ट 13 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 11. सेम लास्ट जो क्वेश्चन की डायरेक्शन थी उसी के लिए एक और क्वेश्चन है, हाउ मनी अर्बन आर नाइदर गवर्नमेंट सर्वेंट नो डॉक्टर्स। सो कितने अर्बन हैं जो ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट में है और ना ही डॉक्टर में है। सो 31, 11, 12, 4, 6 and 3 ये सब क्या है, अर्बन पीपल हैं। अब इसमें से ना तो गवर्नमेंट में होना चाहिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, तो इट मीन्स 12 गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये 4 भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये 6 भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। और ना ही डॉक्टर होना चाहिए, तो 3 भी डॉक्टर हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचे कितने पीपल, सो 31 और 11 बचे, तो 31 + 11 इट मीन्स 42। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42। इट मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. दर्शन इज स्टार्टिंग फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। दर्शन की फेसिंग कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज नॉर्थ एंड 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नोन एज ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहाँ पर दर्शन का स्टार्टिंग फेसिंग है। Now he turns by 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव करता है। सो 45 डिग्री तो ये हो गया और इसके बाद 90 डिग्री, सो टोटल 135 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। सो अब दर्शन का फेसिंग का कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, सो दर्शन का फेस अब साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये वाली डायरेक्शन साउथ होती है, ये वेस्ट होती है। सो दर्शन का अब फेस, फाइनल फेस कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ। इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Daksha started walking from her home towards north. After a walk of 3 kilometers, she turned to left, and after walked 2 kilometers, she turned right again, right and walked 1 kilometer. Finally, she turned right and stopped after a walk of 2 kilometers. How far Daksha is from her home? Suppose कीजिए एक दक्षा का हाउस है और दक्षा ने नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी वॉकिंग को स्टार्ट किया। आफ्टर 3 किलोमीटर चलने के बाद सी टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में उसने टर्न लिया, एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर उसने वॉक किया। नाउ सी टर्न टू राइट, फिर उसने राइट टर्न लिया और 1 किलोमीटर उसने मूव किया, 1 किलोमीटर उसने वॉक की। फाइनली सी टर्न राइट एंड स्टॉप्ड आफ्टर ए वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। फिर से उसने एक राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चलने के बाद किसी पॉइंट पे स्टॉप हो गई। लेट्स सपोज बी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दक्षा। अब दक्षा का और फाइनल पॉइंट, दक्षा के हाउस का और फाइनल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस दक्षा के हाउस से आपको फाइंड करनी है। सो ये 3 हो गया और ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी। सो 3 + 1 इट मीन्स 4 किलोमीटर। सो दक्षा के हाउस से फाइनल पॉइंट की बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर। सो इट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. इफ द लास्ट डे ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर इज थर्सडे, देन हाउ मेनी मंडे विल बी देयर इन द मंथ. किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का अगर लास्ट डे थर्सडे है तो उस मंथ के अंदर टोटल कितने मंडे हो सकते हैं. सो टोटल डे मंथ में कितने हो सकते हैं. 31 हो सकते हैं या फिर 30 हो सकते हैं या फिर 29 हो सकते हैं या फिर 28. इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. अगर टोटल डे 31 है किसी मंथ के और उसका लास्ट डे थर्सडे है
तो उसके मंडे कब कब होंगे? सो इसका मंडे हो जाएगा, अगर लास्ट डे थर्सडे है 31 डेज के अंदर, और तो इसमें 28 डेट को मंडे हो जाएगा, 28 डेट को मंडे हो जाएगा, 21 डेट को मंडे हो जाएगा, 14 डेट को मंडे हो जाएगा, 7th डेट को मंडे हो जाएगा। बस इसके अंदर ये 4 मंडे आ सकते हैं, ये 4 मंडे आ सकते हैं। अगर टोटल डेज 30 का है, अगर टोटल डेज 30 है उस मंथ के अंदर, उसका लास्ट डे थर्सडे है, तो इसके मंडे कब कब हो सकते हैं? तो 27 को मंडे हो सकता है, 20 को मंडे हो सकता है, 13 को मंडे हो सकता है, और 6 को मंडे हो सकता है। अगर टोटल डेज 29 है किसी मंथ के और उसका लास्ट डे थर्सडे है, तो 26 को मंडे हो सकता है, 19 को मंडे हो सकता है, 12 को मंडे हो सकता है, और 5 को मंडे हो सकता है। तो ये इसके अंदर भी 4 मंडे हुए और इसके अंदर भी 4 मंडे हुए। अगर टोटल डेज 28 डेज हैं किसी मंथ के अंदर और उसका लास्ट डे थर्सडे है, तो मंडे कब कब हो सकते हैं? मंडे 25th डेट को हो सकता है, मंडे 18th डेट को हो सकता है, मंडे 11th डेट को हो सकता है, और मंडे 4th डेट को हो सकता है। सो सारे कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मंडे 4 आ रहा है। सो हेयर आंसर इज 4. इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. ए 1st जनवरी ऑफ ए लीप ईयर इज फ्राइडे. अगर 1st जनवरी ऑफ ए लीप ईयर इज फ्राइडे, then what will be the day on 1st April? So 1st अप्रैल क्या हो जाएगा? 1st अप्रैल को कौन सा डे होगा? 1st जनवरी ऑफ ए लीप ईयर. सो लीप ईयर इट मीन्स फरवरी के अंदर टोटल 28 डेज होंगी. सो कितना आ सकता है? सो फ्राइडे और प्लस जनवरी के अंदर टोटल ओड डेज कितने होंगे? 3 प्लस फरवरी के अंदर टोटल ओड डेज कितने होंगे? क्योंकि 28 डेज का होगा फरवरी और 28 डेज के अंदर 0 ओड डे होते हैं. प्लस फरवरी के बाद मार्च में टोटल डे 31 होते हैं, तो 31 डेज के अंदर टोटल ओड डेज बचेंगे 3. एंड अप्रैल का तो एक ही डे चाहिए होता है. सो एक डे में कितने ओड डे होंगे? एक ही होगा. सो फ्राइडे प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा. सो फ्राइडे प्लस 7 हो जाएगा. फ्राइडे प्लस 7 इट मीन्स फ्राइडे ही होता है. सो 1st अप्रैल भी फ्राइडे ही हो जाएगा. अगर किसी लीप ईयर का 1st जनवरी फ्राइडे है तो 1st अप्रैल भी फ्राइडे ही होगा. सो हेयर ऑप्शन 3 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 16. A die is thrown 3 times and its 3 different positions are shown below. Which number will be there on opposite face of 3? 3 का opposite face क्या होगा वो find करना है अपने को. So इन डाइस में अपन कंपेयर करते हैं, तो डाइस 1st और 3 के अंदर देखना फेस 1st कॉमन आ रहा है. अब फेस 1st के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 1st आएगा 6, और इस डाइस 3rd के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1st फेस आएगा 5. सो 6 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 6. 6 के बाद क्लॉकवाइज फिर से चलेंगे तो आएगा 4. तो 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे आएगा 3. सो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 4. सो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि अपोजिट फेस ऑफ 3. सो अपोजिट फेस ऑफ 3 इज 4. सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी 7 आर देयर preceded by 1 and followed by 3? How many 7 are there preceded by 1? 7 are preceded by 1. It means क्या हो जाएगा? 1 7 हो जाएगा. And followed by 3. 7
is followed by 3 इट मीन्स हो जाएगा 7 3, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा 173 आ जाएगा, बिकॉज 7 इज प्रीसीडेड बाई 1 का मतलब होता है 17 और 7 इज फॉलोड बाई 3 का मतलब होता है 37। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा 173। सो इसमें 173 जो आता है और उसमें से 7 कितने हैं, ऐसे 7 कितने हैं वो काउंट करने हैं। सो एक तो ये आ गया, इसमें देखो 7, सो 7 के पहले 1 है और 7 के बाद 3 है, तो वो ही अपने को फाइंड करना है कि 7 से पहले 1 होना चाहिए और 7 के बाद 3 होना चाहिए। सो एक 7 तो ये आ गया। नेक्स्ट एक ये आ गया, क्योंकि इस 7 से पहले भी 1 है और इस 7 के बाद 3 है, तो एक 7 ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक 7 ये आ गया, क्योंकि इस 7 से पहले भी 1 है और इस 7 के बाद 3 है। सो टोटल 7 कितने आ गए ऐसे, सो टोटल 7 आ गए 3। सो इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी 3 आर देयर विच आर आइदर प्रीसीडेड बाय 7 और फॉलोड बाय 7 बट नॉट बिटवीन टू 7s। सो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 3 इज प्रीसीडेड बाय 7, 3 is preceded by 7, इट मीन्स हो गया 7 3। सो 7 3 होना चाहिए, तो ऐसा 3 होना चाहिए जिसके पहले 7 हो। नाउ 3 इज फॉलोड बाई 7, इट मीन्स इसका मतलब हो गया 3 7, मतलब 3 के बाद 7 होना चाहिए। तो ऐसे 3 काउंट कर सकते हैं जिसके पहले 7 हो या फिर उसके बाद में 7 हो, बट नोट बिटवीन 2 7, बस 2 7 के बीच में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे 3 को काउंट नहीं करने जिसके पहले भी 7 हो और बाद में भी 7 हो, ऐसे 3 को काउंट नहीं करना है। सो इस सीक्वेंस में चेक करते हैं। सो एक 3 ये हो गया, बट इस 3 से पहले 7 नहीं है ना ही बाद में 7 है, तो इस 3 को काउंट नहीं कर सकते। एक 3 ये हो गया, इस 3 से पहले 7 है बट बाद में भी 7 है, तो 3 के पहले 7 नहीं होना चाहिए पर बाद में नहीं होना चाहिए, तो इस 3 को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के पहले भी 7 है और 3 के बाद में भी 7 है, तो इस 3 को काउंट नहीं कर सकते। एक 3 हो गया, बट इस 3 से पहले 7 और बाद में 7 नहीं है। एक 3 हो गया, बट इस 3 के पहले भी 7 नहीं है और बाद में भी 7 नहीं है, तो इन दोनों 3 को भी काउंट नहीं कर सकते। ये 3 हो गया, इस 3 से पहले 7 है, तो इस 3 को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इस 3 के बाद में 7 नहीं है, तो इस 3 को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक 3 हो गया, इस 3 के बाद 7 है, तो इस 3 को भी काउंट कर सकते हैं। एक ये 3 हो गया, इस 3 से पहले 7 है, तो इस 3 को भी काउंट कर सकते हैं। सो ऐसे कितने 3 हो गए जिनके पहले 7 हो या फिर उनके बाद में 7 हो। सो ऐसे 3 टाइम्स हो गए। सो हेयर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, P Q R S T and U are 6 member of a family. Q is wife of P and daughter-in-law of U. U's husband is not alive. S is son of R. T is sister of S. R is brother of P. So इस क्वेश्चन के अंदर Q is the wife of P. Q P की वाइफ है, तो इसका मतलब P मेल हो गया और Q फीमेल होगी। एंड Q is daughter in law of U. Q क्या होगी? U की daughter in law होगी। U की daughter in law होगी। Now U's husband is not alive. U का husband जिंदा नहीं है, तो इसका मतलब U फीमेल हो गई और उसका husband जिंदा नहीं है। इसका मतलब ये होगी P की मदर कौन होगी? U होगी। एंड R is brother of P. R क्या है? P का ब्रदर है, तो इसका मतलब R मेल हो गया और P मेल हो गया। इन दोनों की मदर कौन होगी? U हो गई। एंड S इज सन ऑफ R. R का सन कौन हो गया? S हो गया और S क्या हो गया? मेल हो गया। नाउ T सिस्टर ऑफ S. T क्या होगी? S की सिस्टर होगी, इसका मतलब T फीमेल हो गई। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज U रिलेटेड टू R. U का R से कैसा रिलेशन है? तो U R की मदर होगी। सो हेयर option 2 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 20. उसी डायरेक्शन से रिलेटेड है। How is T related to R? So Q का हस्बैंड P हो गया
और P का ब्रदर R हो गया और R का सन S हो गया और S की सिस्टर T हो गई और P और R दोनों की मदर और Q की इन लो U हो गई. सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज T रिलेटेड टू R. T का R से कैसा रिलेशन है? सो T R की डॉटर हो गई. सो इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. सेम पिछले क्वेश्चन वाली डायरेक्शन में, हाउ मनी मेल पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली. सो मेल पर्सन, उस फैमिली के अंदर मेल पर्सन कौन कौन हो गए? क्यों एक फीमेल हो गई, यू भी फीमेल हो गई, पी एक मेल हो गया, आर भी एक मेल हो गया, एस भी एक मेल हो गया और टी फीमेल होगी. तो टोटल मेल कितने हो गए? 1 2 3 मेल पर्सन हो गए इस फैमिली के अंदर. इट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर. सो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं. सो एक ट्रिक तो यह है इसकी कि टोटल सर्कल काउंट कर लो, टोटल ट्राइंगल काउंट कर लो इसके अंदर. सो टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये टोटल मेन ट्राइंगल है इसके अंदर. देखो एक ट्राइंगल ये हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया. सो टोटल ट्राइंगल हो गए 6. सो n की वैल्यू होगी 6. सो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो n की वैल्यू 6 इंटू 6 माइनस 1 इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2. सो ये कैंसिल हो गया 3 टाइम. तो 3 इंटू 5 इट मीन्स 15. सो 15 ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पर. या इसको अदर मैनुअल भी काउंट कर सकते हैं. तो मैनुअल काउंट करेंगे तो देखना 3 ट्राइंगल्स तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 एंड एक पूरा कंप्लीट 3 ट्राइंगल यहाँ पे हो जाएंगे. 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और ये 3 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, पूरा कंप्लीट 3 हो गया. 2 ट्राइंगल्स ये हो जाएंगे, एक तो ये हो गया और एक ये ट्राइंगल्स हो जाएगा. तो 3 + 3 + 2 8 तो ये हो गए. अब इसके बाद कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे? 8 एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, 9 एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, 10 तो 10 ट्राइंगल्स ये हो गए. इसके बाद एक ट्राइंगल ये हो जाएगा कंप्लीट और एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगी, 12 हो गए. इसके बाद एक ट्राइंगल ये हो जाएगा कंप्लीट और एक ट्राइंगल इसके नीचे हो जाएगा, 2 ये हो गए. और इसके बाद एक ट्राइंगल ये बच जाएगा. तो ये टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 + 2 8 2 10 12 14 और एक 15. सो टोटल ट्राइंगल आ जाएंगे 15. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. इनमें से एक डिफरेंट वर्ड चूज करना है. सो एडमिरल, लेफ्टिनेंट, कमांडर. तो इसके अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट ऐसी होती है, ये ऐसी डेजिग्नेशन होती है जो पुलिस के अंदर होती है, बाकी सब आर्म्स फोर्स के अंदर होती हैं. सो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3. सो हेयर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24. 24 के अंदर गैलन, ग्राम, टन, किलोग्राम. ग्राम, किलोग्राम, टन सब मास के मेजरमेंट के यूनिट होते हैं, लेकिन गैलन डिफरेंट होता है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द डिफरेंट. सो इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. P means plus, P means plus, Q means minus, R means multiply and S means divided by. इसके बाद कौन सी इक्वेशंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, R it means multiply, S it means divided by, Q it means minus, P it means plus. Now using BODMAS rule in this way, so first divide the numbers. So 4 divided by 8 it means 1/2. Now 36 multiply by 1/2 it means 18 minus 7 plus 4. Minus 7 plus 4 it means minus 3 is equals to 36. So 18 minus 3 it means 15 never equals to
36. So option first is a incorrect option. Option first incorrect होगा. Now check the option number second. Option second check करेंगे. R it means multiply, P it means plus, S it means divided by, Q it means minus. So first divide the numbers. So 49 divided by 7 it means 7. So 16 multiplied by 12 it means 192 plus 7 minus 9 is equals to 200. So 192 plus 7 it means 199 minus 9 it means 190 not equals to 190 not equals to 200. So option 2B is incorrect हो जाएगा. ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं. ऑप्शन थर्ड इट मीन्स डिवाइडेड बाई, R it means multiply is equals to 160. Q it means minus, R it means multiply. So 32 divided by 8 it means 4 multiply by 9 is equals to 160 minus 12 into 12 it means 144. 4 multiply by 9 it means 36. 36 never is equals to 160 minus 144 it means 16. So 36 never equal to 16. So it means option 3 also a incorrect option. So option 3 भी incorrect हो जाएगा. So it means बचा क्या, एक ही option बचा, option 4. So option 4 correct हो जाएगा. इसको check कर लेते हैं. So R it means multiply, P it means plus, S it means divided by, Q it means minus. बोर्ड मास रूल यूज करेंगे. सो फर्स्ट डिवाइड द नंबर. सो 8 डिवाइडेड बाई 8 इट मीन्स 1. सो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 57. सो मल्टीप्लाई द नंबर्स. 8 multiplied by 8 it means 64 plus 1 minus 8 is equals to 57. 64 plus 1 it means 65 minus 8. 65 minus 8 it means 57. 57 is equals to 57. So here LHS is equals to RHS. It means option 4 is the correct answer of question number 25. Let's move on to the next question. Next question के लिए move किया. So नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस मीन्स मल्टीप्लाई. सो प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवाइड मीन्स प्लस. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट यूजिंग द बोडमास रूल इन दिस इक्वेशन. सो फर्स्ट डिवाइड द नंबर. सो 26 मल्टीप्लाई बाई 74 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 प्लस 2. सो 74 और डिवाइडेड बाई 4. सो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा और ये 37 टाइम हो जाएगा. फिर इसको 2 से 26 से कैंसिल कर देंगे तो 13 टाइम हो जाएगा. तो 13 मल्टीप्लाई बाई 37 माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा. सो 37 मल्टीप्लाई बाई 13 इट मीन्स 481 माइनस 5 प्लस 2 इट मीन्स माइनस 3 हो जाएगा. सो 481 माइनस 3 करेंगे तो 478 हो जाएगा. सो 478 इज द आंसर ऑफ गिवन इक्वेशन. सो इट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. एक डायरेक्शन गिवन है और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग A B C D E F and G and H आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ. सारे सबकी फेसिंग होगी नॉर्थ. सो इस क्वेश्चन के अंदर होगा C सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G. सो सपोज कीजिए G यहाँ है तो G की फेसिंग नॉर्थ है तो इसका लेफ्ट ये डायरेक्शन हो जाएगी और राइट ये डायरेक्शन हो जाएगी. इसके लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पर कौन है, C है. सो 1 2 3 एंड फोर्थ प्लेस ये होगी और यहाँ पे हो जाएगा C और इनके बीच में 3 वैकेंट प्लेस आ जाएंगे. अभी D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G. G का राइट ये डायरेक्शन होगी और उसके राइट के में सेकंड प्लेस पर G के राइट में सेकंड प्लेस पर D हो जाएगा.
यहाँ पे डी हो जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तो आ चुकी हैं। एक प्लेस मे बी डी के इधर हो सकती है और मे बी सी के लेफ्ट में हो सकती है या डी के राइट में हो सकती है। तो इन दोनों की प्लेस अभी फिक्स नहीं है। ये क्या, अगर ये प्लेस गिवन है तो ये प्लेस नहीं होगी, अगर ये प्लेस गिवन है तो ये प्लेस नहीं होगी। सो नाउ आगे इसमें डायरेक्शन दे रखी है, ओनली 2 people सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 ही पीपल हैं। तो डी के इधर में अगर ये प्लेस नहीं मानते तो डी के इधर एक ही प्लेस बची है। तो एक प्लेस बची तो इसका मतलब ए नहीं आ सकता यहां पर। क्यों? क्योंकि डी और ए के बीच में 2 पीपल हैं तो ए नहीं आ सकता। तो ए लेफ्ट में आ जाएगा डी के। तो डी के लेफ्ट में आ जाएगा ए और 2 प्लेस छोड़ के, बिकॉज 1 2 और यहां पे आ जाएगा ए, क्योंकि ए और डी के बीच में 2 पर्सन हैं। नेक्स्ट है बी एंड एफ आर इमीडिएटली नेबर्स। बी और एफ एक दूसरे के नेबर हैं, तो इसका मतलब इमीडिएटली नेबर है, तो इसका मतलब बी यहां होगा तो एफ यहां हो जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, एफ यहां हो सकता है तो बी यहां हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इमीडिएटली नेबर हैं, एक दूसरे के जस्ट पड़ोसी हैं। नाउ बी इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ ए। ए का नेबर नहीं है बी, तो इसका मतलब बी यहां नहीं हो सकता। अगर बी यहां हो गया तो ए का नेबर हो जाएगा, तो इसका मतलब बी यहां हो गया और एफ यहां हो गया। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एक प्लेस क्या तो यहां है और एक क्या यहां है। अगर ये प्लेस यहां है तो ये प्लेस नहीं होगी, अगर ये प्लेस यहां है तो ये प्लेस नहीं होगी। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में कहा है कि एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी का नेबर नहीं है एच, तो इसका मतलब ये प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो ये प्लेस वैकेंट थी, या ये प्लेस वैकेंट थी। अगर ये नहीं माने तो यहां पे एच आएगा तो डी का नेबर हो जाएगा, या फिर यहां पर एच आ जाएगा तो भी डी का नेबर होगा। तो इसका मतलब ये प्लेस ना होकर ये प्लेस गिवन है, तो यहां पे हो जाएगा एच हो जाएगा। एक ही प्लेस वैकेंट बची है और एक ही पर्सन बचा है, वो बचा है ई। सो ई यहां पे हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन इज Who amongst the following sit third to the right of C? C के थर्ड राइट में कौन है? C के थर्ड राइट में, सो C का राइट ये हो गया और उसके थर्ड में कौन है? 1 2 3। C के थर्ड राइट में है A। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। सेम डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन दे रखा है। Who amongst the following are the extreme end of the row? So extreme end पे H था, फिर उसके उधर C था, फिर उधर उसके उधर B था, फिर F था, फिर A था, फिर G था, फिर E था और देन लास्ट में D था। तो एक्सट्रीम एंड पर कौन है? एक तो H है और एक D है। सो H एंड D दोनों ही एक्सट्रीम एंड पर है, तो इट मींस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू F? सेम पीछे वाले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन फाइंड करना है। सो फर्स्ट लेफ्ट से राइट चेक करें तो फर्स्ट पे है H, देन उसके बाद था C, आफ्टर C नेक्स्ट इज B, after B next is F, after F next is A, and then G, next is E, after E next is D. So now question is what is the position of H? H की पोजीशन क्या होगी F के रेस्पेक्ट में? F के रेस्पेक्ट में H की पोजीशन, तो H का ये हो गया लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट में कहां पे है? 1 2 3, तो H F के लेफ्ट में है थर्ड प्लेस पर। सो थर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम द F, H की पोजीशन हो जाएगी थर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम द F। सो इट मींस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन के लिए वही डायरेक्शन दे रखी है, उसी डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन फाइंड करना है। तो यहाँ पे H, फिर H के बाद था C के बाद था B और उसके बाद था F, आफ्टर F नेक्स्ट इज A के बाद था G के बाद E एंड देन D था। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ मनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड E। A और E के बीच में कितने पर्सन है? A और E के बीच में केवल एक ही पर्सन है, वो है G। सो हेयर 1, it means option 4 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 31. If in a code language person is written as SHUVRQ, so PERSON को क्या नोट किया है? SHUVRNQ। सो क्या क्या चेंजेस हुआ इसके अंदर? प्लेस वैल्यू ऑफ P इज 16 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ S इज 19। सो P में अगर 3 ऐड किया तो S आ गया। प्लेस वैल्यू ऑफ E मीन्स 5, प्लेस वैल्यू ऑफ H इट मीन्स 8। सो E में अगर 3 ऐड किया तो H आ गया। सेम R में अगर 3 ऐड किया तो U आ गया। S में अगर 3 ऐड किया, बिकॉज प्लेस वैल्यू ऑफ S इज 19 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ V इज 22, सो 19 + 3 इट मीन्स 22। R के अंदर सेम, R के अंदर भी अगर 3 ऐड किया, O के अंदर 3 ऐड किया तो आ गया R, N के अंदर भी 3 ऐड किया तो आ गया Q। सो नाउ अपने को फाइंड करना है कोड ऑफ सिंदूर, SINDOOR। सो S में अगर 3 ऐड करेंगे, तो V, सो फर्स्ट लेटर आ जाएगा V। I में अगर 3 लेटर ऐड करेंगे, बिकॉज प्लेस वैल्यू ऑफ I इज 9 + 3 इट मीन्स 12, तो आ जाएगा L। 14, बिकॉज प्लेस वैल्यू ऑफ N इज 14, 14 + 3 इज 17, 17 इट मीन्स Q, सो VLQ। सो ऑप्शन 4 तो आंसर नहीं हो सकता, VLQ और बाकी आंसर हो सकते हैं। D के अंदर 4 ऐड किया तो आ गया D + 4 इट मीन्स आ गया G, और O के अंदर 3 ऐड किया तो आ गया R। नेक्स्ट O के अंदर 3 ऐड किया तो अगेन आ गया R, एंड R के अंदर 3 ऐड किया तो आ गया U। सो VLQGRRU इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन 3 is the correct answer of question number 31. Let's move on to the next question. So now next question is question number 32. N means 14 and GUN it means 42. N means 14 because place value of N is 14 in English alphabet, and GUN means 42. So place value of G means 7, place value of U is 21, place value of N is 14 इज इक्वल्स टू 42। अगर इन सारे नंबर को ऐड करते हैं, 7 + 21 इट मीन्स 28, 28 + 14 तो इट मीन्स आ जाएगा 42। सो टैंक का कोड क्या हो जाएगा? सो टैंक के जो भी लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू का सम करना है। प्लेस वैल्यू ऑफ T इज 20, प्लेस वैल्यू ऑफ A इज 1, प्लेस वैल्यू ऑफ N इज 14 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ K इज 11। इन सब का सम करेंगे तो टैंक का कोड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। सो 20 + 1 21 + 14 इट मीन्स 35, 35 + 11, 35 + 11 इट मीन्स 46। तो 46 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. In a certain code language, DEAF is written as 3587. So DEAF को क्या नोट कर रहे हैं? 3 का कोड हो गया, सॉरी D का कोड हो गया 3, E का कोड हो गया 5, A का कोड हो गया 8 एंड F का कोड हो गया 7। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है FILE का कोड हो गया, F का कोड हो गया 7, I का कोड हो गया 4, L का कोड हो गया 6 और E का कोड हो गया 5। सो IDEAL का कोड क्या हो जाएगा?
सो इन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आई का कोड क्या है? आई का कोड है 4, डी का कोड क्या है 3, ई का कोड क्या है 5, ए का कोड क्या है 8 और एल का कोड क्या है 6। 4 3 5 8 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 3 5 8 6 इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। गिवन नंबर पेयर दे रखा है, इनमें से एक पेयर डिफरेंट है, वो डिफरेंट पेयर फाइंड करना है। सो ऑप्शंस को चेक किया, 11 प्राइम नंबर, उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 23 इज ए प्राइम नंबर और उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 23 नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 29, 31 एक प्राइम नंबर है, 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 37, बट 91 एक प्राइम नंबर नहीं है। सो इट मीन्स ऑप्शन 4 डिफरेंट हो जाएगा। सो इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक नंबर पेयर दे रखे हैं, उनमें से एक पेयर डिफरेंट है। सो अगर 15 का स्क्वायर किया तो आ गया 225, उसमें से -1 किया तो आ गया 224 आ गया। 5 का स्क्वायर किया उसमें से -1 किया, इट मीन्स आ गया 24। सो 15 स्क्वायर -1 इट मीन्स 224, 5 स्क्वायर -1 इट मीन्स 24, नाउ 9 स्क्वायर -1 इट मीन्स 80। सिमिलरली 11 स्क्वायर -1 इट मीन्स 120, बट यहाँ पे 122 दे रखा है। सो ऑप्शन 4 के जो नंबर पेयर हैं वो डिफरेंट है। सो इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। एक वर्ड पेयर दे रखा है, सिमिलर जो रिलेशनशिप इन वर्ड्स के बीच में है वो वर्ड चूज करना है आपको 4 ऑप्शंस के अंदर। सो जम्स से बनते हैं डिजीज, सो वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है, सो इट मीन्स तबाही। सो ऑप्शन 4 इस वर्ड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन आ जाएगा ऑप्शन 4 के अंदर। सो हियर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे फाइंड। सो अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, सो चाइना का प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हो जाएगा। सो इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को वर्ड पेयर को कंप्लीट करना है, जो रिलेशन इन दोनों वर्ड्स के बीच में है वो रिलेशन इनके बीच में भी होना चाहिए। तो ऐसा वर्ड चूज करना है अपने को गिवन ऑप्शंस के अंदर से। सो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या करता है? आई का इलाज करता है। तो गेरेंटोलॉजिस्ट क्या करेगा? सो गेरेंटोलॉजिस्ट होता है ओल्ड पर्सन के इलाज के लिए। सो इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 39. If the digit 12 of a clock is pointing towards west, एक clock है उसमें ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो 12 डिजिट है वो किसको शो कर रही है? वेस्ट को शो कर रही है। सो ये वेस्ट को शो कर रही है। वेस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट, तो 6 पॉइंट करेगा ईस्ट को। एंड जो ईस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ, तो 9 शो पॉइंट करेगा साउथ को। सो नाउ क्वेश्चन इज देन इन विच डायरेक्शन विल डिजिट 9 पॉइंट? तो 9 साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ को पॉइंट करेगा। सो इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। मिसिंग नंबर फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन के अंदर 5 to 8, तो इट मीन्स क्या हो गया? +3 हो गया। 8 to 13 इट मीन्स 5 हो गया। 13 to 22 इट मीन्स +9 हो गया। नाउ 32 to 39
इट मीन्स प्लस 17 हो गया। सो 39, अब नेक्स्ट में कितना ऐड करना है, सो चेक करते हैं। 3 to 5, तो 3 और 5 के बीच में 2 ऐड हुआ है। 5 to 9, इट मीन्स 5 और 9 के बीच में 4 ऐड हुआ है। 9 to 17, इट मीन्स 8 ऐड हुआ है। सो पैटर्न क्या होगा, पहले 2, फिर उसका डबल, फिर 4 का डबल 8, अब 8 का डबल 16। सो 17 प्लस 16 इट मीन्स 33। तो 39 के अंदर 33 ऐड कर देंगे तो इट मीन्स आ जाएगा 72। सो 72 इज द मिसिंग नंबर ऑफ गिवन डायग्राम। सो हेयर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। 41 में जो मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो फर्स्ट फाइंड द पैटर्न ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हो जाएगा, ए और ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 26 इन इंग्लिश अल्फाबेट। वी और ई की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22 इन इंग्लिश अल्फाबेट। आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 18, ओ की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12। सो इस क्वेश्चन में जो भी लेटर आएगा उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू नोट हो जाएगी। सो पैटर्न चेक करते हैं। ए टू ई, ए से ई प्लस 4 हो गया। ई टू आई इट मीन्स अगेन प्लस 4 हो गया, बिकॉज प्लेस वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ई इट मीन्स 5। सो 1 to 5 इट मीन्स प्लस 4। Place value of I it means 9. So 5 to 9 it means again 4. O means 15. So O to 15 क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 9 to 15 it means प्लस 6 हो जाएगा। So पैटर्न क्या हो जाएगा, प्लस 4 फिर रिपीट हो गया प्लस 4, अब प्लस 6, अब ये 6 भी रिपीट हो जाएगा। So O it means 15, 15 प्लस 6 it means 21, और 21 इट मीन्स क्या होता है, u। प्लेस वैल्यू ऑफ u इज 21 इन इंग्लिश अल्फाबेट, और u का रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 6। सो u6 इज द मिसिंग टर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। सो हेयर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन के अंदर भी मिसिंग नंबर फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर रो फर्स्ट को अगर सारे नंबर्स का सम करते हैं, रो फर्स्ट के सारे नंबर का सम करते हैं तो आ जाएगा 24 प्लस 20 इट मीन्स 44, 44 प्लस 37 इट मीन्स 81 आ जाएगा। एंड रो थर्ड के भी सारे नंबर्स का अगर सम करते हैं तो कितना आएगा, 26 प्लस 36 इट मीन्स 62 प्लस 91 इट मीन्स अगेन 81। सो रो सेकंड के अगर सारे नंबर्स का सम करेंगे तो 81 आना चाहिए, तो 31 प्लस 25, 31 प्लस 25 इट मीन्स 56। अब 56 में क्या ऐड करें कि 81 आ जाए। सो 56 में अगर 25 ऐड करते हैं तो 81 आ जाएगा। सो इट मीन्स 25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में भी मिसिंग नंबर क्या होगा वो फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन का पैटर्न चेक करते हैं कि पैटर्न किस तरीके से है। सो 7 into 4 करते हैं, 7 into 4 इट मीन्स 28 एंड 5 into 3 करते हैं तो आता है 15। सो 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 13। नाउ सेकंड फिगर के अंदर 8 into 4 अपोजिट नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। सो 8 into 4 इट मीन्स 32 एंड 9 into 3 इट मीन्स 27। सो 32 में से 27 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। सो 5 आ गया। सिमिलरली फिगर थर्ड के अंदर भी यही पैटर्न अप्लाई हो जाएगा, अपोजिट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 9 into 4 इट मीन्स 36। नाउ 8 into 3 इट मीन्स 24
9 into 4 it means 36 and 8 into 3 it means 24. Now 36 minus 24 it means 12. So यहाँ पे मिसिंग नंबर आ जाएगा 12. So here option first is the correct answer of this question. Let's move to the next question. So now next question is question number 44. So 44 क्वेश्चन नंबर 40, ये इंफॉर्मेशन 44 से लेकर 47 तक है. P, Q, R, S and T are 5 important city of our country out of which 3 are industrial city. इन 5 cities के अंदर 3 city हैं जो इंडस्ट्रियल है. 2 are port city. इनमें से 2 city के अंदर पोर्ट है. 1 is a हिल स्टेशन और इसमें 1 city के अंदर हिल स्टेशन है. एंड 3 cities हैव ए यूनिवर्सिटी और 3 city के अंदर यूनिवर्सिटी है. सो फर्स्ट एक टेबल ड्रॉ करते हैं P, Q, R, S एंड T. और इन 5 cities में कुछ cities इंडस्ट्रियल है, कुछ सिटी के अंदर पोर्ट है, कुछ सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी है, कुछ सिटी के अंदर हिल स्टेशन है. हिल स्टेशन सिर्फ एक ही सिटी के अंदर है. सो नाउ क्वेश्चन है इसके लिए एस इज ए हिल स्टेशन. एस क्या है? हिल स्टेशन है. एस हिल स्टेशन है और एक ही इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही हिल स्टेशन है, तो मतलब पी भी हिल स्टेशन नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है एंड टी नहीं है. नाउ एवरी हिल स्टेशन सिटी हैज ए यूनिवर्सिटी. जिस भी सिटी के अंदर हिल स्टेशन है उसमें यूनिवर्सिटी है, तो एक यूनिवर्सिटी एस के अंदर होगी क्योंकि एस के अंदर हिल स्टेशन है. बट नो पोर्ट, बट इसके अंदर पोर्ट नहीं हो सकता. जो भी सिटी हिल स्टेशन में है उसके अंदर पोर्ट नहीं हो सकता. नो पोर्ट सिटी हैज ए यूनिवर्सिटी. कोई भी पोर्ट सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है. क्यू इज ए पोर्ट सिटी. क्यू क्या है? एक पोर्ट सिटी है, तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती. नाउ आर एंड एस आर नॉट इंडस्ट्रियल सिटीज. आर और एस इंडस्ट्रियल सिटीज नहीं है. सो इसका मतलब 3 सिटी बची हैं, पी, क्यू एंड टी, और 3 इंडस्ट्रियल सिटीज होनी चाहिए. तो इसका मतलब पी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, क्यू भी है एंड टी भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है. 2 इंडस्ट्रियल सिटी हैव यूनिवर्सिटी. इसमें से 2 जो सिटी है इंडस्ट्रियल सिटीज है उनमें यूनिवर्सिटी है. अब P, Q एंड T 3 इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, उनमें से 2 में यूनिवर्सिटी है. सो Q इंडस्ट्रियल सिटी है लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी नहीं है. सो बाकी बची P एंड T, इन दोनों के अंदर यूनिवर्सिटी हो जाएगी. और 3 यूनिवर्सिटी है इसके अंदर. सो 1, 2 एंड 3 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, तो इसका मतलब R के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती. And the industrial city with university doesn't have port. The industrial city with university doesn't have port. जिस भी इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर पोर्ट है, जिस भी इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पोर्ट नहीं है. तो जिस भी इंडस्ट्रियल सिटी, पी एक इंडस्ट्रियल सिटी है उसके अंदर यूनिवर्सिटी है. सो द इंडस्ट्रियल सिटीज विथ यूनिवर्सिटी, जिस भी इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पोर्ट नहीं है. तो इसका मतलब पी एक इंडस्ट्रियल सिटी है और उसके अंदर यूनिवर्सिटी है, तो इसमें पोर्ट नहीं हो सकता. टी एक इंडस्ट्रियल सिटी है उसके अंदर यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर भी पोर्ट नहीं हो सकता. सो 2 पोर्ट होने चाहिए. सो आर के अंदर एक पोर्ट होगा. सो नाउ क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रियल सिटी हैज ए पोर्ट बट डज नॉट हैव ए यूनिवर्सिटी. कौन सी इंडस्ट्रियल सिटी? तो यहाँ पे 2 ही ऐसी सिटी हैं जिसके अंदर पोर्ट है, एक तो क्यू है और एक आर है.
लेकिन आर इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। क्यों ही इंडस्ट्रियल सिटी है जिसके अंदर पोर्ट है, बट डज नॉट हैव ए यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्यों ऐसा है जिसके अंदर पोर्ट है और वो इंडस्ट्रियल सिटी है और उसके अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है? सो ऑप्शन 3 is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 45. Last time वाले question P, Q, R, S and T. So P industrial city है, Q भी industrial city है, R industrial city नहीं है, S नहीं है and T भी industrial city है. इसके अदर पोर्ट सिटी, P के अंदर पोर्ट नहीं है, Q के अंदर पोर्ट है, R के अंदर पोर्ट है, S के अंदर पोर्ट नहीं है और T के अंदर पोर्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की बात करें, P के में यूनिवर्सिटी है और Q के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, R के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है और S और T के अंदर यूनिवर्सिटी है। हिल स्टेशन की बात करें तो सिर्फ S को छोड़कर बाकी कोई भी सिटी के अंदर हिल स्टेशन नहीं है। सो नाउ क्वेश्चन इज विच सिटी हैज नाइदर इंडस्ट्रीज नोर ए यूनिवर्सिटी नोर ए हिल स्टेशन? कौन सी सिटी के अंदर है जिसके अंदर ना तो इंडस्ट्रियल है, ना ही यूनिवर्सिटी है और ना ही हिल स्टेशन है, सो विच सिटी हैज़ नाइदर इंडस्ट्रीज? कौन सी सिटी है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल नहीं है? तो दो सिटी ऐसे जो इंडस्ट्रियल नहीं है। नोर ए यूनिवर्सिटी, उनमें से यूनिवर्सिटी नहीं है, तो एस के अंदर तो यूनिवर्सिटी है, तो बचा क्या? आर बचा। और उसके अंदर हिल स्टेशन भी नहीं है। सो आर ही सिटी ऐसी है जिसके अंदर ना तो इंडस्ट्रियल है, ना यूनिवर्सिटी है और ना हिल स्टेशन है। So here R, it means option second is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. Next question is which two city have port? कौन सी दो सिटी के अंदर पोर्ट थे? So पोर्ट सिर्फ दो सिटी के अंदर थे, P, Q, R, S and T. P इंडस्ट्रियल सिटी था, Q भी इंडस्ट्रियल सिटी था, R इंडस्ट्रियल सिटी नहीं था, S नहीं था और T था। पोर्ट कौन सी दो सिटी के अंदर थे? पोर्ट P के अंदर नहीं थे, Q के अंदर पोर्ट था और R के अंदर पोर्ट था, S के अंदर पोर्ट नहीं था और T के अंदर पोर्ट नहीं था। तो कौन सी दो सिटी हैं जिसके अंदर पोर्ट हैं? सो Q and R. So Q and R, it means option second is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 47. Which industrial city have also a university? कौन सी इंडस्ट्रियल सिटी है? P, Q, R, S and T. इसमें से इंडस्ट्रियल सिटी थी, P इंडस्ट्रियल है, Q है, R इंडस्ट्रियल नहीं है, S नहीं था और T इंडस्ट्रियल सिटी है। और पोर्ट किसके अंदर था? पोर्ट केवल Q और R के अंदर था, बाकी कोई भी सिटी के अंदर पोर्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी सिटी में था? यूनिवर्सिटी थी, P के अंदर यूनिवर्सिटी था और Q के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं थी और R के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं थी और S और T के अंदर यूनिवर्सिटी थी। सो क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रियल सिटी ऑल्सो हैव ए यूनिवर्सिटी? इंडस्ट्रियल सिटी भी होनी चाहिए, साथ में उसमें यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी P के अंदर भी यूनिवर्सिटी है और T के अंदर भी यूनिवर्सिटी है और दोनों ही इंडस्ट्रियल सिटी भी है। सो P एंड T, Q इंडस्ट्रियल सिटी तो है बट इसके अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है। सो P एंड T इज द करेक्ट आंसर। P एंड T, इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move on to the next question. So now next question is question number 48. A solid cube has been formed with 64 smaller cube of side 1 centimeter. How many smaller cube out of 64 will be completely invisible? So in this question, total number of small cube is equals to 64. Number of small cube दे रखा है 64. नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला होता है n क्यूब। सो n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 64। सो n क्यूब इज इक्वल्स टू 64 को अपन नोट कर सकते हैं 4 क्यूब। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 4। n होता है नंबर ऑफ क्यूब ऑन ईच साइड, एक साइड पर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितनी है? 4। नाउ फाइंड द
टोटल इनविजिबल क्यूब. टोटल इनविजिबल क्यूब मीन्स नो साइड पेंटेड क्यूब फाइंड करना है. इनविजिबल क्यूब के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n-2 का होल क्यूब. सो n मीन्स 4, वैल्यू ऑफ n इज 4 माइनस 2 इसका होल क्यूब. 4 माइनस 2 इट मीन्स 2, 2 का क्यूब. 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8. सो यहां पर 8 क्यूब ऐसी रहेंगी जो इनविजिबल रहेंगी. सो हेयर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. फाइंड द वोटर इमेज ऑफ गिवन फिगर. सो इस डायग्राम का वोटर इमेज फाइंड करना है. सो इस डायग्राम का वोटर इमेज सो इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी ऑप्शन में इस डायग्राम का एग्जैक्ट वोटर इमेज गिवन नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 49 बोनस होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट वोटर इमेज कोई सा भी ऑप्शन गिवन नहीं है. अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात करें तो 3-4 में से हो सकता है, बट एग्जैक्ट कोई भी गिवन नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 49 बोनस होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. फाइंड द वोटर इमेज ऑफ गिवन फिगर. सो गिवन डायग्राम का वोटर इमेज फाइंड करेंगे. सो द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू द वोटर, सो इट विल रिमेन्स नियर टू द वोटर. सो हेयर ऑप्शन नंबर 4 is the exact water image of given question. So here option 4 is the correct answer of question number 50. So we have finished the paper solution. I hope you understood it very well. Thank you so much for being here.